हाय यूसर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने आरएनएन के कुछ लिमिटेशंस और कुछ डिज़ायर्ड कैपेबिलिटीज़ की बात की थी कि हमारे पास कौन कौन सी डिज़ायर्ड कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए और सीक्वेंशियल मॉडल्स को बनाने के लिए हमारे पास कौन से गोल्स होने चाहिए थे। वो गोल्स भी हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे कि हमारे पास हम रिकरेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, हम एक ही इनपुट वेक्टर बनाना चाहते हैं और ताकि वो हम अपने नेटवर्क को फीड करके एक फीचर वेक्टर जनरेट कर सकें और वही फीचर वेक्टर हमें प्रिडिक्टेड आउटपुट भी जनरेट कर सकें। उसके बाद हमने कहा था कि क्या हम इसके बावजूद भी हमें जो टाइम स्टेप बाय टाइम स्टेप प्रोसेसिंग है, अगर वो हम फिर भी अपने न्यूरल नेटवर्क या सीक्वेंशियल मॉडल के अंदर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमने एक आइडिया जस्ट डिस्कस किया था, जस्ट स्टार्ट किया था सेल्फ अटेंशन का। तो ये सेल्फ अटेंशन बेसिकली हमारे पास बहुत ही पावरफुल एक कॉन्सेप्ट है मॉडर्न डीप लर्निंग और एआई के अंदर। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न डीप लर्निंग एंड एआई. Basically, I can't emphasize enough how powerful this concept is. Attention is a foundational mechanism of the transformer architectures, which may of you may have heard about, and it is the notion of a transformer can often be very daunting because sometimes they are presented with these really complex diagrams are deployed in complex applications, and you may think, okay, how do I even start to make sense of this? Is its core, though attention, the key operation is very intuitive idea, and we are going to, in the last portion of this lectures, break it down step by step to see why it is so powerful and how we can use that as part of a large neural networks like a transformer. Okay. Specifically, we are going to be talking about focusing on the idea of self-attention, attending to the most important parts of an input example. So let's consider an image. I think it's most intuitive to consider an image first. This is a picture of an Iron Man, and if a goal is to try to extract information from this image of what we could do, maybe is using our eyes, naively skin or this image pixels by pixel, right, just going across the image. However, our brains maybe internally they are doing some type of computation like this, but you and I, we can simply look at this image and be able to attain the most important part. We can see that's Iron Man coming at you right in the image, and then we can focus in a little further and say, okay, what are the details about Iron Man that may be important? What is key? What you are doing is your brain is identifying which parts are attend to, and then extracting those features and deserve the highest attention. The first part of this problem is really the most interesting and challenging one, and it is very similar to the concept of search effectively. That's what search is doing. Taking some larger body of information and trying to identify the important parts. So let's go. Let's go there next. How does search work? You are thinking you are in this class. How can I learn more about neural networks, more about deep learning? Well, in this day and age, one thing you may be, besides coming here and joining us and going to, beside this, coming to the class and attending the lectures, one thing is you maybe go there to the internet, having all the videos out there, trying to find something that matches, doing and then doing a search operations. So you have गेंट डेटा सेट्स। आप हो सकता है आप इसी तरह चले जाएं यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे आप क्या कर लें, सर्च क्यूरी यहाँ पे दे दें, जिस तरह के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डीप लर्निंग, हमारे पास सर्च क्यूरीज है। जैसे आप यहाँ पे सर्च क्यूरीज दे देते हैं तो आपके पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट कंटेंट्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। वो कंटेंट्स आपके पास क्या है, बेसिकली आप ये देखते हैं कि मेरी जो सर्च क्यूरी है वो किस किस के साथ ओवरलैप कर रही है। हर एक जो सर्च ऑप्शन आपके पास आ जाता है तो उसको आप एक प्रॉपरली एक की असाइन कर लेते हैं
ओके। तो फिर आप ये कंपेयर करते हैं कि हाउ सिमिलर इज द की टू द क्यूरी, के जो मेरी क्यूरी है डीप लर्निंग की वो कौन सी जो की है उसके साथ वो कौन सी सिमिलरिटी है, कितनी सिमिलरिटी है और कितना वो सिमिलर है। ओके, फर्स्ट वन हमने देख लिया तो ये हमारे पास सिमिलर नहीं था। सिमिलरली फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने दूसरा जो हमारे पास कंटेंट थे, दूसरे कंटेंट के साथ अपने सर्च क्यूरी को कंपेयर करते हैं और फिर इसकी सिमिलरिटी देखते हैं कि ये हमारे पास सिमिलर है या नहीं है। सो दूसरा हमारे पास क्योंकि ज़्यादातर सिमिलर है, तीसरा हमारे पास सिमिलर नहीं था। सो कंप्यूट अटेंशन मास्क हाउ सिमिलर इज ईच की टू द डिजायर्ड क्यूरी। सो उसके बाद जब हमने ये चीज़ देख ली कि कौन सी हमारे पास जो है वो सिमिलर है, थर्ड वन भी नहीं है, फर्स्ट वन भी नहीं है, जो दो दरमियान में हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ डीप लर्निंग, क्योंकि डीप लर्निंग हमारे पास है तो इसको हमने क्या कर दिया, ये जो इस क्यूरी के अगेंस्ट हमें जो की मिल गया वो ये की हमें हमारे मॉडल ने, हमारे नेटवर्क ने रिटर्न कर दिया। ओके, नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्टिंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन व्हाट वी वांट टू पे अटेंशन टू एंड दैट्स द वीडियो इटसेल्फ। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लें तो कि की भी हमारे पास आ गया और की के साथ हमारे पास जो वैल्यूज भी थी वो भी हमारे पास रिटर्न आ गई कि हम कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। एक्सट्रैक्ट वैल्यू बेस्ड ऑन अटेंशन, रिटर्न द वैल्यूज हाईएस्ट अटेंशन। सो हमने एक क्यूरी पुट की, डिफरेंट कीज हमने अप्लाई किए, उसके बाद हमने कीज और क्यूरी को आपस में कंपेयर किया और उस कंपैरिजन के बाद हमने एक वैल्यू रिटर्न कर दी कि ये जो कंटेंट्स हैं दे नीड्स टू पे हायर अटेंशन, हाईएस्ट अटेंशन इन द कंटेंट्स इन द सीक्वेंस। The idea giving query trying to find similarity, trying to extract the related values that form the basis of self attentions and how it works in neural networks like transformer. Let's understand concretely by considering the test examples. For example, एक टेक्स्ट एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। नाउ हमारा गोल क्या है, अटेंड टू फीचर्स इन दिस इनपुट दैट आर रिलेवेंट टू द सिमेंटिक मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो ये हमारे पास एक सेंटेंस है, देख लें टाइम स्टेप्स को हमने खत्म कर दिया, रिकरेंस हमारे पास खत्म है। तो ये जस्ट एक इनपुट वेक्टर के फॉर्म में हमारे पास है। वी हैव सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस है। वी हैव ऑर्डर, हमारे पास ऑर्डर भी है। वी हैव एलिमिनेटेड रिकरेंस एंड डेटा इज फिट इन ऑल एट वंस विद ऑल टाइम स्टेप्स। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी स्टिल नीड अ वे टू एनकोड एंड कैप्चर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर एंड दिस पोजिशनल डिपेंडेंसी। एनकोड पोजिशनल इंफॉर्मेशन, हमने सबसे पहले क्या करना है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन को हमने एनकोड करना है। वो पोजिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, एंड द वे इज द आइडिया टू यूज प्रोसेसिंग पोजिशनल एनकोडिंग व्हिच कैप्चर सम इनहेरेंट ऑर्डर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के अंदर जो कुछ इनहेरेंट इंफॉर्मेशन होती है ऑर्डर्स की, वो हमने क्या करनी, कैप्चर करनी है। रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ एम्बेडिंग डिस्कसिंग अर्लियर बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स टू एनकोड पोजिशनल इंफॉर्मेशन दैट कैप्चर द रिलेटिव रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर विद इन द टेक्स्ट टर्म। तो ये हमने जो इनहेरेंट कुछ ऑर्डर इंफॉर्मेशन थी टेक्स्ट के अंदर वो हमने कैप्चर कर दी। तो ये हमारे पास पोजिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर सेल्फ अटेंशन कैसी होती है। देयर इज नो नोशन ऑफ टाइम स्टेप्स, द डेटा इज सिंगुलर बट स्टिल वी लर्न this encoding that captures the positional order informations. Our next step is to take this encoding and figure out what to attend exactly like to search operation in your YouTube. अब हमने क्या करना है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन हमने ले ली। अब जिस तरह हमने YouTube पे एक सर्च ऑपरेशंस परफॉर्म किया था, हमारे पास हमने क्यूरी पुट की, कीज हमारे पास आ गई, उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ वैल्यू रिटर्न हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनकोड पोजिशनल इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास एक पोजिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। अब पोजिशनल इंफॉर्मेशन को अगर आप लोग देख ले तो ये हमारे पास जस्ट एक कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हमने एक अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पोजिशनल इंफॉर्मेशन पे, ये जो हमारे पास पोजिशनल एनकोडिंग आ गई, उसमें हम क्या करना है, एक्सट्रैक्ट क्यूरी की वैल्यू एंड रिलेटिंग देम टू ईच अदर फॉर सर्च बाय गिविंग इट टू न्यूरल नेटवर्क लेयर। हमने इस पे क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें क्यूरी अप्लाई करनी है। जो हमने अपने नेटवर्क लेयर को, ये लीनियर लेयर हमारे नेटवर्क लेयर को शो करता है, इसको हमने फॉरवर्ड करनी है। तो वो हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, एक क्यूरी हमारे पास रिटर्न होगी। व्हाट अटेंशन डज इज अप्लाइज न्यूरल नेटवर्क लेयर ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट जनरेटिंग द क्यूरी। तो फर्स्ट केस के अंदर न्यूरल नेटवर्क लेयर ने क्या किया कि हमने जब जो पोजिशनल हमारे पास पोजिशनल एम्बेडिंग या पोजिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, हमने इससे अब क्यूरी की और वैल्यू को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और इनको हमने फिर रिलेट करना है टू ईच अदर्स बाय सर्च बाय गिविंग इट अ न्यूरल नेटवर्क लेयर। इसी तरह
फिर इस पोजिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने अप्लाइंग अ सेपरेट न्यूरल नेटवर्क लेयर विद डिफरेंट सेट ऑफ वेट्स कंफर्मिंग बाय जनरेटिंग अ की। हमने इस पे अगेन अपने न्यूरल नेटवर्क एक सेपरेट न्यूरल नेटवर्क विद सेपरेट वेट्स हमने इस पे अप्लाई करना है, जो कि हमें जनरेट करके देगा नेक्स्ट स्टेप पे। उसने हमें की जनरेट करके दे दिया। सिमिलरली हमारे पास थर्ड स्टेप पे सेम स्टेप हमने प्रोसेस किए तो हमारे पास कुछ वैल्यूज भी रिटर्न हो गई। सो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने पोजिशनल एम्बेडिंग पहले करनी है। सीक्वेंस के अंदर जो इनहेरेंट इन्फॉर्मेशन ऑर्डर इन्फॉर्मेशन होती है उनको हमने कुछ पोजीशन एम्बेडिंग स्कीम अप्लाई करनी है। पोजीशंस हमारे पास आ गई, वो पोजीशनल एनकोडिंग हमने अपने न्यूरल नेटवर्क्स को फॉरवर्ड कर दी, उसने हमें क्यूरी जनरेट करके दी। वही पोजिशनल इनकोडिंग हमने दूसरे लेयर्स को फॉरवर्ड कर दी विद डिफरेंट सेट ऑफ वेट्स, उसने हमें की जनरेट करके दिया। और थर्ड स्टेप पे हमने उसी तरह लीनियर नेटवर्क लेयर्स को वही पोजिशनल एनकोडिंग दी और उसने हमें कुछ वैल्यूज रिटर्न करके दे दी। ओके, नाउ विद दीज थ्री एनहेंड्स द क्यूरी, the key and value, we can compare them to each other to try to figure out what in that self input the network should attain to what is important, and that is the key idea behind the similarity matrix or attention score। तो अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने YouTube सर्च वीडियो के अंदर देख लिया था कि सबसे पहले हम क्यूरी देते हैं, उस क्यूरी के बाद हमारे पास कुछ कंटेंट्स आते हैं, की जनरेट हो जाती हैं, उन की और क्यूरी को हम कंपेयर करते हैं और उसके दरमियान हम सिमिलरिटी को फाइंड आउट करते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि सिमिलरिटी मैट्रिक्स या जो अटेंशन स्कोर होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है। ओके, नाउ आइडेंटिफाई एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इनपुट। सबसे पहले हमने पोजिशनल इन्फॉर्मेशन गेट कर दी, फिर उसके बाद हमने क्यूरी की वैल्यू वो भी एक्सट्रैक्ट की। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, कंप्यूट अटेंशन वेट। अटेंशन वेट इज बेसिकली कंप्यूट पेयर वाइज सिमिलरिटी बिटवीन ईच क्यूरी एंड की। How to compute similarity between two sets of features? As we know that the query and keys are just arrays of numbers। वो हमने देख भी लिए कि जस्ट वो हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। So just like vector in space, the query vectors are some query values and the key vectors are some key values। Obviously जो हमारे पास query है और वो जो वेक्टर्स जो की वेक्टर बनेगा या क्यूरी वेक्टर बनेगा वो हमारे पास जस्ट कुछ नंबर्स हैं। सो हम इन नंबर्स को जस्ट इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली वी कैन कंपेयर दिस टू वेक्टर्स टू अंडरस्टैंड हाउ सिमिलर दे आर बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट। हम क्या कर सकते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं ये देखने के लिए कि ये हमारे पास कितने सिमिलर हैं, एंड देन अप्लाइंग स्केलिंग टू इट। और उसके बाद हम इस पर क्या कर सकते हैं, स्केलिंग अप्लाई कर सकते हैं। कैप्चर्स हाउ सिमिलर दीज वेक्टर्स आर पॉइंटिंग आर नॉट इन द सेम डायरेक्शंस। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिमिलरिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैथमेटिकल अगर लीनियर अलजेब्रा के टर्म्स में हम बात कर लें तो इसको हम कोसाइन सिमिलरिटी भी कहते हैं। तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई कि हम सिमिलरिटी मैट्रिक्स को कैसे देखते हैं, सिमिलरिटी मैट्रिक्स से अटेंशन स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हमारे पास जो क्यूरी और की है उसका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और उस पर हम स्केलिंग अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास एक सिमिलरिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब सिमिलरिटी मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आ जाएगा, थर्ड वन हमारे पास। अब इसी तरह ये जो हमारे पास क्यूरी है, if we apply this dot product operation to our query in key matrix in our query and key matrix we get this similarity matrix। तो हमारे पास अगर हम की जो हमारे पास की मैट्रिक्स है उस पे हम अप्लाई कर लें ये सेम ऑपरेशन डॉट प्रोडक्ट का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। And then a very key and defining or next step, computing the attention weighting in terms of what the network should actually change within this input। तो वो हमारे पास किस तरह होगा, third one, fourth one step, attention weighting, where to attend, how similar is the key to the query। हम जो वैल्यू रिटर्न करेंगे हमने क्या करना है, अपनी की और क्यूरी को कंबाइंड कंपेयर करना है कि कितने हमारे पास सिमिलर्स हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, उसके अगेंस्ट हमारे पास वैल्यूज आ जाए। सो दिस ऑपरेशंस गिव अस अ स्कोर व्हिच डिफाइंस हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द इनपुट डेटा आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आप लोग देख लें तो ये हमारे पास जस्ट वो जो लाइन है, ही टॉस द टेनिस बॉल टू सर्व, ये हमारे पास वो लाइन था, ये हमारे पास अब सिमिलरिटी मैट्रिक्स है। अब सिमिलरिटी मैट्रिक्स हमारे पास, सो गिवन अ सेंटेंस व्हेन वी कंप्यूट द सिमिलरिटी स्कोर मैट्रिक्स वी कैन देन बिगिन टू थिंक ऑफ वेट्स दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सीक्वेंशियल डेटा टू ईच अदर। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा है डिफरेंट, अब इसके दरमियान जो वेट्स होती हैं रिलेशनशिप बेसिकली होती है, इन टर्म्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ऑफ द सीक्वेंशियल डेटा टू ईच अदर। सो हम फिर उसके बाद वेट्स को डिफाइन करते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं। अब ये हमारे पास डिफरेंट देख लें वेट्स आ गए।
वेट्स कैसे हमारे पास आ जाती हैं कि हम ये जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया होता है इस ये हम एक नॉन लीनियर फंक्शंस को अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास अटेंशन वेट या वेट्स इस तरह हमारे पास कैलकुलेट हो जाती हैं। वेट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? वेट्स डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द सीक्वेंस। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है कि ही टॉस्ड द टेनिस बॉल, फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप तीन वर्ड्स देख लें, टॉस्ड, टेनिस एंड बॉल्स, दे आर मोस्टली रिलेटेड। अगर इसके कलर्स को देख लें तो इनका जो वेट्स है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा नजर आ रहा है कि ये जो तीन वर्ड्स हैं ये हमारे पास मोस्टली रिलेटेड है। सो वेट्स बेसिकली किस चीज को डिफाइन करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सीक्वेंशियल डेटा। ओके, for example, the example with the text, he tossed the tennis ball to serve. The goal with this score is that words in the sequence that are related to each other should have high attention weight. So जो words ज़्यादातर आपस में relate करते हैं उनका क्या होगा, जो attention weight होगा, they preserve a higher attention weight. For example, मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि tossed को देख लें, इसकी attention weight ज़्यादा है, tennis को देख लें, इसकी attention weight ज़्यादा है, ये जो डार्क कलर है। इसी तरह जो बॉल है इसका भी देख लिया, अटेंशन वेट हमारे पास ज्यादा नजर आ रहा है। ओके, ball related to toss, related to tennis, and this metric itself is our attention weighting by passing that similarity score through a softmax functions that constrain those values in between 0 and 1. Obviously हमें पता है कि अगर हम नॉन लीनियर फंक्शंस को ये पास ऑन कर देते हैं तो ये हमें क्या कर लेते हैं, वैल्यूज बिटवीन 0 and 1 प्रोवाइड कर लेते हैं। ओके, फाइनल स्टेप हमारे पास क्या होगा? Now, having the matrix that can capture this notion of similarity and these internal self relationships, we can finally use this matrix to extract feature deserving higher attention. अब वो feature extract कर लेते हैं, extract feature with a higher attention. तो वो हम कैसे करते हैं? We take the attention weight matrix, multiplying it by the value and get a transformation of our initial data as our output, which reflect the features of high attentions. ये हम क्या कर लेते हैं? अटेंशन वेटिंग मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू, इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हमारे पास फिर क्या आ जाता है, जो आउटपुट होगा हमारे पास, जो हमारे पास इनपुट होगी, दिस इनपुट बेसिकली विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर इनिशियल डेटा इज और आउटपुट। जो हमारा इनिशियल इनपुट होगा, जो सीक्वेंस ऑफ डेटा होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। सो हो क्या रहा है हमारे पास, ये हमने जब हमारे पास जो क्यूरी थी हमारे पास, हमने उस क्यूरी और की जनरेट हो गए, उसके बाद हमने सिमिलरिटी मैट्रिक्स देख लिया, सिमिलरिटी मैट्रिक्स के बाद हमने अटेंशन वेट हमारे पास आ गए। इस अटेंशन वेट पे हमें ये पता चल गया कि कौन से जो वर्ड्स थे वो मोस्टली ज़्यादातर हाइयर रिलेटेड, उनमें रिलेशनशिप ज़्यादा थी। अच्छा, जो रिलेशनशिप ज़्यादा थी उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू मैट्रिक्स के साथ, जो कि हमारे पास पहले जो इनकोडिंग हम कर रहे थे, पोजिशनल इनकोडिंग पे हमने अपने न्यूरल नेटवर्क लेयर को पास कर दिया था, तो हमारे पास वहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई थी। वो वैल्यूज हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास वी गेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ और इनिशियल डेटा इज और आउटपुट। ओके, so let's recover, we have covered so far क्या कुछ हमने पढ़ा। The goal with this idea of self attention, the backbone of transformation is to eliminate recurrence and attend to the most important feature in the input data in an architecture. In architectures, how this will be deployed, किस तरह डिप्लाई होगा। सबसे पहले देख लें, टेक इनपुट डेटा एंड कंप्यूट पोजिशनल इनकोडिंग। हमारे पास जो इनपुट डेटा आ गया उसकी हमने क्या कर दी, पोजिशनल इनकोडिंग हमने कंप्यूट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया कि उस पोजिशनल इनकोडिंग पे हमने अपने न्यूरल नेटवर्क मॉडल को, न्यूरल नेटवर्क लेयर्स आर अप्लाइड 3-4 टू ट्रांसफॉर्म दिस पोजिशनल इनकोडिंग। जो पोजिशनल इनकोडिंग थी हमने देख ले, आप लोगों को याद होगा कि हमने ये पोजिशनल इनकोडिंग अपने न्यूरल नेटवर्क को फॉरवर्ड की थी, जिसने हमें क्यूरी जनरेट करके दी थी। इसी तरह दूसरे लेयर ने हमें की जनरेट करके दी और तीसरे लेयर ने हमें कुछ वैल्यूज जनरेट करके दी थी। सो थर्ड वन के अंदर हमारे पास क्या था, कंप्यूट द सेल्फ अटेंशन वेट स्कोर डॉट प्रोडक्ट। हमने क्या किया था, सेल्फ अटेंशन के लिए जो सिमिलरिटी वेट था कि जो हमारी क्यूरी है और जो की है उसकी सिमिलरिटी हमारे पास कितनी है, उस पर हमने डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया था और फिर उसको हमने सॉफ्टमैक्स फंक्शंस को अप्लाई किया था, जो कि हमारे पास जो अटेंशन वेट है वो हमारे पास आ गया था। उसके बाद हमने उसके बाद उसको स्केल आउट किया हुआ था एंड देन सेल्फ अटेंड टू दीज इन्फॉर्मेशन टू एक्सट्रैक्ट फीचर दैट डिजर्व हाई अटेंशंस। तो जो हमारे पास हमने फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, वो फीचर हमने एक्सट्रैक्ट की जिनको हायर अटेंशन की जरूरत थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर जो बात है, पावरफुल अबाउट दिस अप्रोच, टेकिंग दिस अटेंशन वेट, पुटिंग इट टुगेदर विद द वैल्यू टू एक्सट्रैक्ट हाई अटेंशन वेट्स। फिर ये जो अटेंशन वेट्स थे हमारे पास, हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू के साथ, तो उसके बाद हमारे पास जो हायर अटेंशन फीचर्स थे वो इस हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास इस आउटपुट आ गए। So these operations form a self attention head that can plug into a large network. Each head attend to a different part of networks. अगर हमारे पास जितना भी बड़ा नेटवर्क होगा, यही जो अटेंशन हेड का कॉन्सेप्ट है
यही हमने अप्लाई करना है। अब ये जस्ट हमारे पास एक अटेंशन हेड बन गया, ये एक हमारे पास अटेंशन हेड बन गया। ईच हेड अटेंड टू अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इनपुट्स। अब इनपुट्स के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे, हर एक पार्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह डिफरेंट हेड्स बनाएंगे। वो अल्टीमेटली हमारे पास जो क्यूरी की और वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स थे वो हमें क्या कर लेंगे, हमारा जो इनपुट सीक्वेंस होगा दैट विल बी फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू डिजायर्ड आउटपुट। ओके, अब अगर हम अप्लाइंग मल्टीपल सेल्फ अटेंशन हेड, अगर हम मल्टीपल सेल्फ अटेंशन हेड को अप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास अटेंशन वेटिंग फॉर एग्जांपल जो मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा था, ये मेरे पास वैल्यू है और ये मेरे पास क्या है, जस्ट आउटपुट है। ओके, सो एक अटेंशन हेड मेरे पास ये हो सकता है कि आर एन मिन अटेंशन हेड के मैं अपने ये मेरे पास चूंकि इनपुट था जस्ट एक हेड मेरे पास सिर्फ सिंपली क्या कर रहा है कि मुझे ये बता रहा है कि आयरन मेन को मैंने क्या करना है, सिंपली डिटेक्ट करना है। आउटपुट ऑफ अटेंशन हेड टू, दूसरा एक अटेंशन हेड ये हो सकता था, यू मे हैव अदर अटेंशन हेड पिकिंग और अदर रिलेवेंट पार्ट ऑफ द डेटा मे बी वी डिड नॉट रियलाइज बिफोर द बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पहले तस्वीर को देख लिया था, आप लोगों ने सिर्फ जो आयरन मेन था उस पर फोकस किया था, लेकिन जो रेलिवेंट उसके साथ और इन्फॉर्मेशन होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग्स वगैरह है, इसको आप लोगों ने कैप्चर नहीं किया। सो जो दूसरा अटेंशन हेड होगा वो क्या करेगा, आयरन मेन अटेंशन हेड वन आयरन मेन को अटेंशन पे करेगा, जो दूसरा हेड होगा वो बिल्डिंग को अटेंशन पे करेगा। सिमिलरली जो तीसरा वन होगा स्पेसशिप इन द बैकग्राउंड चेजिंग आयरन मेन, एक स्पेसशिप भी उसके अंदर था जो कि क्या कर रहा था, आयरन मेन को चेज कर रहा था। सो जो हमारा तीसरा हेड होगा वो क्या करेगा, attention pay karega to the spaceship. Okay, this is a key building block of many powerful architectures that are out of today. Can't be emphasized how powerful these mechanisms, कि हम किस तरह जो हमारे पास ये इनपुट था, जस्ट एक इनपुट था हमारे पास, लेट्स सपोज ये हमारे पास इनपुट है। अब इस इनपुट में हमने डिफरेंट हेड्स को डिफाइन करना है कि जो हेड्स इनपुट जो सीक्वेंस है उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने हर एक हेड उसके लिए बनाना है, जो क्या कर लेगा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कैप्चर्स करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि किन इन्फॉर्मेशन को हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। सो कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड दिस इज द बैकबोन आइडिया ऑफ सेल्फ अटेंशंस दैट यू जस्ट बिल्ट अप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इज द की ऑपरेशंस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग मॉडल आउट देयर टुडे। कौन कौन से हमारे पास आजकल जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस है जो कि मोस्टली सेल्फ अटेंशन के आइडियाज पे काम करते हैं इन द डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, the very powerful language model like GPT-3, 4 or 5 which are capable of synthesizing natural language in a very human-like fashions, digesting large bodies of text information to understand relationship in text. So जो आप लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं, उस चैट जीपीटी के अंदर बेसिकली चूंकि लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, एक आप इज अ सीक्वेंस इनपुट देते हैं, इनपुट इज अ सीक्वेंस देते हैं, आपके पास आउटपुट भी जैसे एक सीक्वेंस में आ जाता है। तो जो आप इनपुट देते हैं उनके उस इनपुट के दरमियान, उस इनपुट के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यही सेल्फ अटेंशन जो हेड टेक्निक्स है, अटेंशन टेक्निक्स है, ये हम अप्लाई कर लेते हैं। ओके, दूसरा हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल सीक्वेंस, to model that are being deployed for extremely impactful applications in biology and medicine like OPA42, which uses this notion of self attention to look at data of protein sequence। प्रोटीन के अंदर जो डेटा होता है हमारा बेसिकली सीक्वेंस फॉर्म के अंदर आ रहा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेल्फ अटेंशन टेक्निक्स है ये हम अप्लाई करते हैं एंड बी एबल टू प्रिडिक्ट द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जस्ट गिवन सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन अलोन। Okay, the third one is very important, that is computer visions, my favorite topic, my favorite subject that will be covered hopefully in the next lectures. Even now to computer visions, where the same idea of attention that was initially developed and sequential data applications is now transformed to the field of computer vision, using the key concept of attending to the important features in all input to build these very rich representation of complex high dimensional data. So hopefully we will start computer vision, the topic of computer visions, the essential mathematics and the applications of computer visions in our next lectures. So this is for the recurrent neural networks. यहाँ तक हमने इसकी चीज़ें कवर की। So क्या कुछ हमने कवर किया, समरी RNN और वेल सूटेड फॉर सीक्वेंशियल मॉडलिंग टास्क। हमने सबसे पहले ये देख लिया था कि सीक्वेंशियल मॉडलिंग के लिए RNN किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जो न्यूरल नेटवर्क है वो किस तरह यूज़ नहीं हो सकता था। देन मॉडल सीक्वेंस वाया रिकरेंट रिलेशनशिप, हमने रिकरेंस के फाउंडेशंस को देख लिया था। ट्रेनिंग RNN विद वेव प्रोपेगेशन थ्रू टाइम्स,
models for different applications like music generation, classification, language translation, etc., and then self-attentions, the most powerful techniques for transformer architectures, to model sequence without recurrence, and then finally we discussed some powerful models of neural networks and deep learning. So thank you very much for being with us.